So, well, in today's session, I am here to discuss the topic admicellary polymerization. So, get ready to experience the miracles of this topic with Garima. So, as the topic of our today's discussion is admicellary polymerization, but इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगी that you all must first know about polymerization. कि polymerization होता क्या है? What are polymers and the different types? How any polymerization reaction proceeds on, and with all this, what are different techniques of polymerization? ठीक है? And I also hope that you all have studied the basic concept of polymerization in your lower classes, right? So today, let's just revise the topic of polymerization because this is the main route to understand the topic admicellary polymerization. Okay? So what is polymerization? Polymerization is just a process to synthesize polymers. ठीक है? So can you synthesize polymers without knowing them exactly? Yes or no? Obviously no, है ना? So it is very important to first know about polymers. What are polymers before their synthesis? Okay? So let's start with polymers, and after knowing polymers, after having detailed introduction of polymers, then we will move to polymerization. Okay? So what are polymers? What are polymers? You know, there is a very famous quote that without natural polymers there is no life, and without synthetic polymers there is no standard of living. So what is getting clear from this quote? It is obviously getting clear from this quote that polymers are absolutely something which play very vital role in our life, right? And let me tell you all that this is very true, that without polymers life seems very unpredictable to us. तो चलिए फिर इस क्योट को वेरीफाई करते हैं. So to verify this quote, look at your surrounding everyone and observe the things that are present in your surrounding. Like if I talk about myself, then in my surrounding, table is present, chair is present, this whiteboard is present, which you can clearly see. This marker is present, okay? Electrical board is present, electrical switches are present. And I think some of the same things would be present in your surrounding also, है ना? So what I basically want to say is that these all things are made up of polymers. So see how polymers have made our life very easy, very comfortable. Even the clothes which we have wear now are also made up of polymers. Even the paint that is present on these walls is also made up of polymers. So see how polymers are playing vital role in our life, right? And I think on knowing all these applications of polymers, you would be more curious to know about polymers. कि भाई ये polymers actually में होते क्या है ना? So let's proceed with this. Polymers are actually very large and very complex compounds that are totally different from low molecular weight compounds. देखो what I said, कि polymers are very large and very complex compounds that are totally different from low molecular weight compounds. Right? So what are low molecular weight compounds? होते क्या है low molecular weight compound? ऐसे compound जिनका molecular weight क्या होता है, बहुत ही कम होता है. तो अब हम क्या करते हैं, पॉलीमर को समझने के लिए हम पॉलीमर को रिलेट करते हैं किसके साथ, लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स के साथ, राइट? तो अगर मैं लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड का एग्जांपल लूं, देन दैट इज कॉमन सोल्ट. देखो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों ने पॉलीमर ना देखा हो कि हाउ पॉलीमर लुक्स लाइक, बट आई एम डैम श्योर कि आप सबने कॉमन सोल्ट तो जरूर देखा होगा. देखा है? सबने देखा है? इनफैक्ट यू वुड बी टेकिंग इन योर डाइट रेगुलरली, राइट? अच्छा, अब जरा यहाँ देखो. What I am having in my hand? What I am having in my hand? I am having this water bottle in my hand, right? जो कि बहुत ही सिंपल सी है और ये मार्केट में बहुत टाइम से अवेलेबल है, राइट? लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो क्या
अभी मार्केट में सेम ही टाइप का, सेम ही साइज का, सेम ही शेप की वाटर बॉटल्स अवेलेबल हैं? सिर्फ इसी ही टाइप की वाटर बॉटल्स आ रही हैं? यस और नो? ऑब्वियसली नो, है ना? आजकल तो इसके बहुत सारे अपडेटेड वर्जन्स आ रहे हैं, राइट? इनफैक्ट नाउअडेज पोर्टेबल वाटर बॉटल्स आर कमिंग, है ना? तो सपोज कि मुझे उस पोर्टेबल वाटर बॉटल के बारे में बताना है अपनी फ्रेंड को, ठीक है? उसने कभी नहीं देखी पोर्टेबल वाटर बॉटल कि हाउ इट लुक्स लाइक, लेकिन मुझे उसे बताना है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया सोर्स टू शो हर पिक कि हाउ इट लुक्स लाइक। तो मैं उसको कैसे बताऊं? ऑब्वियसली मैं उसको किसी ऐसी थिंग से रिलेट करके बताऊंगी कि जिसकी प्रॉपर्टीज एक तो उस पोर्टेबल वाटर बॉटल से मैच करती हूँ, और दूसरा कि उस जिस थिंग से रिलेट करके मैं बताऊंगी वो थिंग उसने भी देख रखी हो कि हाउ दैट थिंग लुक्स लाइक, राइट? लाइक आई विल से टू हर कि दैट पोर्टेबल वाटर बॉटल एग्जैक्टली लुक्स लाइक नोटबुक, है ना? इट इज इजी टू हैंडल, इट इज इजी टू कैरी, इट इज अ वेरी लाइट वेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि उसको मेरी सिंपल वाली वाटर बॉटल से रिलेट करके बता सकती हूँ, है ना? जो मेरी सिंपल वाटर बॉटल है उसको अगर मैं उसके साथ रिलेट करूँ, देन बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो मैं उसको क्या बताऊंगी कि दैट पोर्टेबल वाटर बॉटल इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस सिंपल टाइप बॉटल, है ना? एज दिस इज वेरी लॉन्ग इन साइज, but that portable water bottle is very broad in size, it is very thin, you can simply put that bottle in your bag just like notebook, right? तो ऐसे ही हम पॉलीमर्स को रिलेट करके चलते हैं किसके साथ? कॉमन सॉल्ट के साथ, राइट? जस्ट टू अंडरस्टैंड पॉलीमर इन बेटर वे, बिकॉज वी ऑल हैव सीन दैट हाउ कॉमन सॉल्ट लुक्स लाइक, इनफैक्ट वी ऑल आर कंज्यूमिंग इट इन आवर डेली डाइट, ओके? तो अब चलो देखते हैं कि पॉलीमर्स और कॉमन सॉल्ट का क्या रिलेशन है। लेट मी टेल यू कि पॉलीमर्स आर जस्ट अपोजिट टू लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स, दैट इज कॉमन सॉल्ट, जिसका एग्जांपल हमने कंसीडर किया है ना? अब कैसे है, लेट्स देखो, हम कह रहे हैं, देखो वी पीपल आर सेइंग कि कॉमन सॉल्ट इज व्हाट? लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड, दैट इज सोडियम क्लोराइड, राइट? तो अब ये लो मोलिकुलर वेट लो तो है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है? दैट इज 58.5, राइट? लेकिन अगर हम पॉलीमर की बात करें, पॉलीमर के मोलिकुलर वेट की बात करें, देखो सबसे पहले तो हम पॉलीमर और कॉमन सॉल्ट को मोलिकुलर वेट के बेसिस पर ही रिलेट कर रहे हैं। हमने कहा कि इनका रिलेशन क्या है? अपोजिट है। तो वो देखते हैं कि कैसे अपोजिट है। तो हम कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट कितना है? 58.5 है, लेकिन अगर हम पॉलीमर के मोलिकुलर वेट की बात करते हैं, देन दैट इज several 100,000 times more than this molecular weight of low molecular compound, that is we have considered NaCl. समझ में आई बात? Understand the relation between polymer and low molecular weight compound, that is NaCl, on the basis of solubility. Let's understand this diagram. ये diagram हमें क्या indicate कर रहा है ना? देखो इस diagram में I have drawn a beaker. अच्छे से दिख रहा है? तो इस beaker में मैंने क्या लिया है? फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया है, राइट? तो इस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में मैंने क्या ऐड किया? NaCl की क्रिस्टल्स ऐड की, ठीक है? आई थिंक आप सबने सोडियम क्लोराइड तो डिसॉल्व किया ही होगा वाटर में घर पे, है ना? तो व्हाट आई बेसिकली वांट टू टेल इज कि जब हम किसी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में NaCl की क्रिस्टल्स ऐड करते जाते हैं इन कॉन्टिन्यूअस मैनर विद प्रॉपर स्टिरिंग, तो क्या ऑब्जर्व होता है कि जैसे ही NaCl की क्रिस्टल्स फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में ऐड होते हैं तो वो एकदम से डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना? इट बिल्कुल टाइम लगता ही नहीं है, डालते ही जस्ट प्रॉपर स्टिरिंग करते ही वो डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट? लेकिन जैसे ही हम इसका और कंटिन्यूअस एडिशन करते जाते हैं, NaCl क्रिस्टल्स और डालते जाते हैं विद प्रॉपर स्टिरिंग, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट डिसोल्यूशन गेट्स स्टॉप्ड, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज व्हाट? सैचुरेशन पॉइंट, राइट? एंड आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस सैचुरेशन पॉइंट, राइट? तो आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट डिसोल्यूशन स्टॉप हो जाता है, तो फिर वो फर्दर एडेड NaCl का होता क्या है? दैट फर्दर एडेड NaCl गेट्स डिपॉजिट एट द बॉटम इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, राइट? व्हिच यू कैन क्लियरली सी। तो अब इसकी सोल्युबिलिटी तो होती है कुछ इस तरीके से, इसकी कॉमन सॉल्ट की। अब हम देखते हैं कि हाउ पॉलीमर डिसॉल्व्स इन वाटर, राइट?
देखो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि नॉट ऑल द पॉलीमर्स आर सोल्यूबल इन वाटर, देयर आर सम पॉलीमर्स व्हिच आर सोल्यूबल एंड देयर आर सम व्हिच आर नॉट सोल्यूबल, एज इट इज वेरी क्लियर टू यू लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सो ऑलवेज पोलर पॉलीमर इज एबल टू डिसॉल्व इन वाटर। ओके, तो अगर हम पोलर पॉलीमर की बात करें तो दैट इज पॉलीविनाइल अल्कोहल, दैट इज पोलर पॉलीमर यू कैन से। तो सपोज ये देखो ये पॉलीमर है, ये कॉमन सॉल्ट के कंपैरिजन में क्या है, लार्ज साइज है, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया ना कि दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, सो ऑब्वियसली उनका साइज क्या होगा, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होते हैं। देन जैसे ही पॉलीमर को हम वाटर में ऐड करते हैं, फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में ऐड करते हैं, तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि पॉलीमर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसॉल्व, अनलाइक सोडियम सॉल्ट, अनलाइक कॉमन सॉल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो पॉलीमर क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, इट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। तो जैसे ही हम पॉलीमर को फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है, सोलन हो जाता है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसा कि हमें पता है कि अब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमेना है, तो जैसे ही वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, सॉल्यूशन की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, रिमेंबर इट। अच्छा, अब जैसे ही वो स्वोलन हो गए तो उनकी शेप में भी कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है, जिसकी वजह से और स्टिरिंग करते हैं। देन आफ्टर सम टाइम इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो लेकिन इसका अच्छा पॉइंट ये है कि जैसे हम इसके अंदर कितना भी कॉन्टिन्यूस, जैसे हम कॉन्टिन्यूस पॉलीमर एडिशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कितना भी पॉलीमर ऐड कर लें, सारा का सारा पॉलीमर हमारा डिसॉल्व हो जाता है, यहाँ पर कोई भी सैचुरेशन पॉइंट सीन नहीं होता है। बात आई समझ में? तो विस्कोसिटी ऑफ दिस पॉलीमर सॉल्यूशन इज मोर देन दिस सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। पॉलीमर्स आर लार्ज साइज, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यू कैन से हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वाटर में। देखो तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने पॉलीमर को रिलेट किया किसके साथ, कॉमन सॉल्ट के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। First is on the basis of their molecular weight and the other is on the basis of their solubility, right? तो अब हम कह रहे हैं बार बार ये बात कि polymers are high molecular weight compound, high molecular weight compound, they are macromolecules, right? तो अब ऐसा क्या है कि what is the reason behind their high molecular weight? बात समझ में आ रही? So now let's know कि what is the reason behind their high molecular weight compound? कि वो हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड क्यों है? इससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड या फिर मोलिकुलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल से आप समझते क्या है? व्हाट डज दिस मोलिकुलर वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल एग्जैक्टली मींस? देखो जब भी कहीं पर बात होती है मोलिकुलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल की, इसका मतलब सिंपल सा है कि वहां पर बात हो रही है मॉलिक्यूल के मोलर मास की। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फिर मोलर मास आप कैसे निकालते हो किसी मॉलिक्यूल का? जस्ट by adding all the atomic weight of all the atoms that is present in that molecule, right? तो what I exactly want to say is किसी भी molecule का या किसी भी compound का molecular weight किस पर depend करता है? हम कहते हैं कि कुछ molecules are of high molecular weight, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि polymer is high molecular weight compound and whereas that common salt is low molecular weight compound, है ना? तो ऐसा क्या है, क्यों, किस फैक्टर पर molecular weight of compound डिपेंड करता है? देखो मोलिकुलर वेट डिपेंड करता है हमारे थ्री फैक्टर्स पर। हाउ मेनी फैक्टर्स? थ्री फैक्टर्स, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। नेक्स्ट फैक्टर इज टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। एंड थर्ड फैक्टर इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। बात आ रही है समझ में? देखो इस बात को हम समझते हैं कि सपोज मैं आपको 5 बिस्किट्स देती हूँ फ्रॉम अनदर पैकेट एंड 5 बिस्किट्स फ्रॉम अनदर पैकेट, ठीक है? सपोज कि मैं आपको 5 बिस्किट्स दे रही हूँ लिटिल हार्ट पैकेट में से एंड 5 बिस्किट्स मैं आपको दे रही हूँ टाइगर क्रंच बिस्किट पैकेट में से, ठीक है? एंड मैं आपको कहती हूँ कि दोनों का वे करो, ठीक है? एंड व्हेन यू वे यू फाइंड कि इनका वेट, ये सपोज लिटिल हार्ट का है और ये है टाइगर क्रंच के बिस्किट्स, ठीक है? सपोज इनका वेट क्या आता है आपका 5 ग्राम और इनका वेट आता है 10 ग्राम, राइट? तो अगर हम वैसे बात करें तो देखो है तो 5 बिस्किट्स इधर भी और इधर भी, मतलब नंबर ऑफ बिस्किट्स तो क्या है, सेम है, तो इनका इस अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर वेट तो क्या आना चाहिए,
सेम आना चाहिए, बट दैट इज डिफरेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइप ऑफ बिस्किट्स प्रेजेंट क्या है, डिफरेंट है। बात आई समझ में? ऑल्सो इनकी अरेंजमेंट भी क्या है, डिफरेंट। मतलब टाइप ऑफ बिस्किट डिफरेंट का मतलब ये है कि भाई इनकी कंपोजिशन क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। कंपोजिशन के साथ साथ इनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट है, इनका डिजाइनिंग भी डिफरेंट है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट होता है मॉलिक्यूल्स के केस में, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल्स के केस में बात करते हैं तो मुझे जरा बताओ कि एक मेरे पास मॉलिक्यूल है CO2 दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है H2O दैट इज योर वाटर, राइट। तो इन दोनों में से किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है? किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है? यू पीपल वुड से कि भाई ऑब्वियसली CO2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू H2O, है ना। तो क्यों है? व्हाई दिस इज सो? बिकॉज देखो यहाँ पर अब नंबर ऑफ एटम्स तो क्या है, सेम है ना। यहाँ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन 3 forms 3 atoms, and here 2 hydrogen and 1 oxygen also forms 3 atoms। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, तो इस अकॉर्डिंग तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट क्या है, डिफरेंट है। बात आई समझ में? यहाँ पर देखो कार्बन प्रेजेंट है और वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कार्बन इज हैवियर एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, डिफरेंट है, ओके। और इनकी अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट है? यू नो कि हाउ व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ CO2? Arrangement of CO2 molecule is somewhat like this: carbon in the center and 2 oxygens on both sides, okay। And if I talk about water molecule, then in water molecule arrangement is somewhat like this, arrangement is band shaped, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताओ कि यहाँ पर अभी जो है मोलिकुलर साइज किसका ज्यादा है? इस मोलिक्यूल का ज्यादा है क्या इस मोलिक्यूल का ज्यादा है? ऑब्वियसली इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो कार्बन क्या है, हाई मोलिकुलर वेट है, क्योंकि कार्बन क्या है, हैवियर एटम है, राइट। इसका साइज क्या है, बड़ा है, बल्कि एटम है, और ये लीनियरली अरेंज है, तो ये वॉल्यूम जो है वो ज्यादा गेन कर रहा है एज कंपेयर टू दिस। देखो मॉलिक्यूलर साइज से आप क्या समझते हो? किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर साइज से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बेसिकली? मॉलिक्यूलर साइज का मतलब क्या? किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो स्पेस में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो ज्यादा है, इट मींस कि दिस इज ऑक्यूपाइंग मोर वॉल्यूम इन स्पेस एज कंपेयर टू दिस, दैट्स व्हाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो हाई एज कंपेयर टू H2। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम, अब हमने मॉलिक्यूलर वेट को अच्छे से समझ लिया कि मॉलिक्यूलर वेट मींस होता क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल होता क्या, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि पॉलीमर का हाई मॉलिक्यूलर वेट है, तो भाई ऐसा क्या है जिसकी वजह से पॉलीमर का हाई मॉलिक्यूलर वेट है, राइट। व्हाट आर द फैक्टर्स टू व्हिच पॉलीमर गेन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट? So to understand this point, let's understand the construction of polymer कि पॉलीमर जो है वो बना किससे, राइट। तो अब हम पॉलीमर की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के एग्जांपल्स, ठीक है। आई थिंक आप सबने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होते तो देखा होगा, देखा है, सबने देखा है। तो कैसे होती है कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट? कैसे होती है? जस्ट बाय जॉइनिंग वन ब्रिक विद अदर, वन ब्रिक विद अदर, वन ब्रिक विद अदर एंड सो ऑन, है ना। ऐसे कह लो, जस्ट बाय जॉइनिंग वन ब्रिक विद अदर, वन ब्रिक विद अदर, वन ब्रिक विद अदर, वन ब्रिक विद अदर, है ना। ऐसे कुछ इस तरीके से होती है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सारी है तो ब्रिक्स ही, मतलब अल्टीमेटली ब्रिक्स आर फॉर्मिंग बिल्डिंग, राइट। तो और ब्रिक्स भी क्या है, सिमिलर है, दैट आर ऑफ सेम शेप, सेम साइज, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ, सेम डायमेंशन, है ना। तो इसलिए मैं इन ब्रिक्स को यहाँ पर क्या कह सकती हूँ, these bricks are of what? These bricks are similar repeating units. These bricks are similar repeating units for this building, right? तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पॉलीमर की कंस्ट्रक्शन होती है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं ऐसे सारे ब्रिक्स को जस्ट एक दूसरे के पास में लाकर रख दूं, इनको ज्वाइन ना करूं, तो क्या मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस ही मेंटेन नहीं होगा, राइट। तो
बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिर्फ ब्रिक्स को पास लाना जरूरी नहीं है, ब्रिक्स के बीच में बॉन्डिंग होना भी बहुत जरूरी है। और वो बॉन्डिंग कैसे होती है? जस्ट बाय यूजिंग सीमेंट एंड ऑल, राइट। अब हम देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीमर सिमिलर है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, देखो जब हम बात कर रहे हैं ना जब हम बात कर रहे हैं पॉलीमर की, लेट मी टेल यू कि पॉलीमर इज मेड अप ऑफ लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स दैट इज नोन एज मोनोमर। ओके, दैट इज मेड अप ऑफ मोनोमर। तो ऐसे ही पॉलीमर भी कंस्ट्रक्ट होता है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीमर आपको समझाते हैं कि कैसे, हाउ इट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, so here I am constructing, suppose this is polymer, okay। ऐसे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में किया है मैंने। यहाँ पर ये क्या थी? ब्रिक्स थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? मोनोमर्स हैं दैट आर लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड। अभी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलीमर्स आर हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड, तो वो तो एक्चुअली हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड है, लेकिन वो बने कैसे हैं? किससे हैं? लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड से, जिनको हम क्या कह रहे हैं? मोनोमर्स कह रहे हैं। बात आई समझ में? अब ये मोनोमर्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग से क्या बन जाता है? पूरा पॉलीमर बन जाता है। जैसे कि जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहे थे कि जस्ट एक ब्रिक को एक ब्रिक के पास लाने से बिल्डिंग फॉर्म नहीं हो जाती, ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ मोनोमर्स को एक दूसरे के पास आने से पॉलीमर कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। ठीक है, टू फॉर्म पॉलीमर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मैंडेटरी कि दीज ऑल मोनोमर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। वहां पर उनकी लिंकिंग कैसे हो रही थी? जस्ट बाय यूजिंग सीमेंट एंड ऑल, राइट। लेकिन यहाँ पर उनकी लिंकिंग कैसे हो रही है? अभी हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो अब इनकी लिंकिंग होने के लिए देखो, ये जो मोनोमर्स हैं इनके अंदर कुछ लिंकिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मानते हो क्या? नहीं, है ना? सो दे शुड हैव लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब वो कैसे लिंक होते हैं वो सब चीजें हम पॉलीमराइजेशन वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ओके, तो देखो जैसे हम बात करते हैं पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। सो व्हाट इज दिस पॉलीब्यूटाडाइन? दिस इज अ पॉलीमर। ठीक है, देखो पॉलीमर नेम से ही सजेस्ट हो रहा है ना, देखो नेम से ही आप लोगों को सजेस्ट हो रहा है कि पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट्स। ओके, सो पॉलीमर इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। और किसके पार्ट से मिलकर बना है? मोनोमर से। अगर हम पॉलीमर के पार्ट्स की बात करें तो वो क्या है? मोनोमर्स दैट आर लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स, राइट। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीब्यूटाडाइन की। ठीक है, पॉलीब्यूटाडाइन की। तो इसको देखते ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सा मोनोमर यूज्ड है। Here monomer used for synthesis of this polymer is butadiene. ठीक है, so poly means many and butadiene is the monomer used here. So many units of butadiene combines with each other to form this molecule, to form this polymer polybutadiene. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि butadiene ब्रैकेट में like this। ठीक है, सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंटेशन इंडिकेट? ये रिप्रेजेंटेशन हमें बता रहा है कि ये मोनोमर यूज्ड दैट इज ब्यूटाडाइन कितने टाइम्स एंड रिप्रेजेंट्स कि भाई वो कितने टाइम कंबाइन हुआ। 1 टाइम, 2, 3, 4, 10, 100,000, कितने टाइम वो कंबाइन हुआ इस पॉलीमर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ दिस मोनोमेरिक यूनिट। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज इंडिकेटिंग कि ये ब्यूटाडाइन n टाइम्स कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है? ये पॉलीमर फॉर्म करता है दैट इज पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि पॉलीब्यूटाडाइन एक पॉलीमर है, राइट। तो पॉलीमर है तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? हाई होगा। यू नो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 200,000। हाउ मच? 200,000 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पॉलीमर पॉलीब्यूटाडाइन, जो कि किससे मिलकर बना है? ब्यूटाडाइन से। एंड यू विल बी वंडर टू नो कि सिंगल ब्यूटाडाइन यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना है? दैट इज ओनली 54। तो देखो कि ये ब्यूटाडाइन कंबाइन होकर के कितना हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड सिंथेसाइज कर देते हैं, है ना। एन अमेजिंग प्रोसेस है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पॉलीमर है वो सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना है, सिंगल टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना है दैट इज ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसके अंदर
सारे मोनोमेरिक यूनिट सब ब्यूटाडाइन ही है, जो कि सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर, सेम केमिकल फॉर्मूला के, ठीक है। यू नो कि ब्यूटाडाइन 400,000 टाइम्स आपस में लिंक होता है टू फॉर्म दिस पॉलीमर पॉलीब्यूटाडाइन। बात आई समझ में। लेकिन ऐसे कुछ पॉलीमर्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि मोर देन 2 मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने हैं, जो मोर देन 1 मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने हैं। जैसे कि अगर मैं उसके एग्जांपल की बात करूं, देन दैट इज नथिंग बट द नाइलॉन 66, नाइलॉन 66. So this is the polymer which is made up of more than one monomer. ठीक है, how many monomers are used here in synthesis of this polymer? 2 monomers are used. And you know कि भाई ये 6 हमें क्या represent कर रहा है? What does 6 represents to us? This 6 represents कि इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि 2 monomers are used, तो ये 6 first 6 represents करता है कि जो first वाला 6 है, it represents 6 atoms of first monomer. And this represents the 6 atoms of another monomer that is used in the formation of this polymer nylon. Okay, so let me tell you all that the monomer used in this polymer nylon 66 are adipic acid and hexamethylene diamine. All right. अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि कैसे पॉलीमर्स जो है वो एक टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर भी बन सकते हैं, और कैसे मोनोमर्स जो है वो मोर देन 1 टाइप या मोर देन 2 टाइप ऑफ मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ओके, अगर हम ऐसे ही और एग्जांपल्स की बात करें, देन लेट मी टेल यू कि पॉलीइथाइलीन इज अ पॉलीमर व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। ठीक है, तो व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीइथाइलीन पॉलीमर? पॉलीइथाइलीन. So the monomer used to synthesize this polymer polyethylene is ethylene. Okay, so single type of monomer ethylene is used here. And if I talk about proteins, then let me tell you that proteins are also polymers. Why? Because they are macromolecules, they are high molecular weight compounds, and they are also made up of similar repeating units. Similar repeating units of protein क्या है? Amino acids, right? So let me tell you that proteins are made up of 20 amino acids. How many amino acids? 20 amino acids. So these amino acids act as monomers here. These amino acids are low molecular compounds. Okay? So proteins are made up of amino acids which act as monomers here. And these proteins are made up of 20 amino acids. Means 20 types of monomers are used here. Are you getting my point? And these 20 amino acids are different in their chemical structure, chemical formula, shape, size. Okay, so some amino acids out of these 20 amino acids are obtained from our body itself, while some are obtained from our food which we consume in our daily life. Okay, ठीक है, तो चलो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीमर को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं by taking an another example. All right, so let me draw first and then I will convey what I want to make you clear from this drawn diagram. All right. So have a look everyone.
What I want to convey from this diagram is, देखो ये मैंने बनाई है, ये जो सर्कल सर्कल आपको दिख रहा है, you would be thinking कि why I am drawing circle circle here, right? तो ये सर्कल्स और कुछ नहीं है, ये सर्कल्स मैंने जो बनाए हैं, ये कंसीडर करो आप इन सर्कल्स को कि ये है वो सर्कुलर रिंग्स जिनके साथ आप अपने चाइल्डहुड में खेला करते थे. Have you ever played with these circular rings in your childhood? जिसको आप ऐसे around your back rotate करते थे. याद आया है ना? So let these rings be those circular rings. Okay? So let these rings is equal to those circular rings. Okay? अब मैंने इन रिंग्स को, ये जो रिंग्स हैं, ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं, ये आप सबको दिखाई दे रहा है कि सब सेम शेप की हैं, सेम साइज की है ना? अब जैसे ही मैंने इन सभी रिंग्स को क्या किया, ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, तो इनको ज्वाइन करके क्या बन गई, एक उन सर्कुलर रिंग्स की चेन बन गई, राइट? सर्कुलर रिंग्स की क्या बन गई, चेन बन गई. लेकिन अगर मैं वहाँ सेकेंड केस की बात करती हूँ, तो है तो मेरी ये भी सर्कुलर रिंग्स ही, ठीक है, लेकिन ये जो सर्कुलर रिंग्स है वो क्या है, डिफरेंट साइज की है ना? शेप इज ऑल्सो डिफरेंट, ऑल आर सर्कुलर, बट व्हाट इज डिफरेंस हियर कि ये क्या है, अलग अलग साइज के हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है, विच यू कैन क्लियरली सी, है ना? और ऐसे ही मैंने इनको भी आपस में क्या कर दिया, लिंक कर दिया. तो देखो नो डाउट चेन तो ये भी बनी रिंग्स की, है ना, और चेन ये भी बनी रिंग्स की. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो रिंग्स की चेन बनी है वो सेम टाइप ऑफ सर्कुलर रिंग से मिलकर बनी है ना, जिनका सेम स्ट्रक्चर सेम साइज है. लेकिन ये जो है वो डिफरेंट साइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर रिंग से मिलकर बनी है. बात आई समझ में? नाउ ऐसे ही पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है. तो अगर मैं पॉलीमर की बात करूं, पॉलीमर की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो लेट दीज ऑल रिंग्स बी इज इक्वल टू मोनोमर्स ऑफ द सेम टाइप. ठीक है, let these all is equal to monomers of the same type. ठीक है, let these all rings be representing monomers of same type, same structure, same chemical formula, same shape. Okay, and whenever these same types of monomers combine with each other, then they form a chain. Then they form a chain of their monomeric units, जो कि आपको दिख रही है ना. And these all monomeric units are of same type, same structure. ठीक है, so let this be polymer which is formed from same type of units. Formed from same type of monomeric units. Okay. So yes everyone, till now we have discussed the basic introduction about polymers, कि what are polymers, what is composition of polymers, and how polymers get constructed, right? We have seen the general construction of polymers. Okay, so that's it for today. So in my upcoming video, I will discuss in detail that how polymers are actually made. Okay, so till now, if you like my video, then keep it up thumbs up, subscribe to my channel and recommend to your friends. Alright, thank you. Bye bye.